51 लोगों ने उसको एड्रेस किया। अब आपने हमारे प्रस्तावों के विषय में जान लिया है। अब आपके सवाल, प्रस्ताव भी अभी आपके मोबाइल्स पे आ रहा है या आ चुका होगा। अब आपके सवाल एएनआई सर, मेरे दो सवाल है। पहला सर, there are two questions of mine. One is the BJP is saying that this CWC is only for political gain, not for Bihar. You insulted Rajendra Prasad, you insulted Jaiprakash Narayan, you insulted Amrit Jajivan Ram. This is the statement of BJP leader Ravi Shankar Prasad in Delhi. What do you have to say about it? Yeah, I told in the initial stage itself, we are really proud of that we are meeting, extended working committee is meeting in Tadagat Ashram, in which office Babu Rajendra Prasad ji stayed after he vacating the President of India. After vacating the President of India, Babu Rajendra Prasad stayed in this. You check that. We are really proud of that Rajendra Prasad's legacy. BJP is now trying, our CWC's aim is very clear. We have done in Belgavi, where there was no election. We have done in Ahmedabad, there was also no election. Now we are in Patna, because SIR is introduced in Bihar. After that, Vote Adhikar Yatra is also done in Bihar. Now Bihar is become one of the major democratic point. That is why the history of Bihar is also like that only. Bihar has a biggest pivotal role in freedom struggle. That is why we have done in this CW section in Bihar. दूसरा सवाल अनवर जी, पीटीआई। चुनाव आयोग का सवाल है। राहुल जी ने ट्वीट भी किया है चुनाव आयोग। And what specifically what did he say about what will be allegations in this press conference? Certainly, he himself demonstrated through his two press conferences that this is not really an allegation of forgery. Here is a clear evidence of forgery. That was his press conference. Today he mentioned about that. He is again working on other constituencies. It's Jairamji already told us, which can be a hydrogen bomb or any other bomb coming soon. The entire discussion on this issue is that basically these BJP people are now coming into the power with this forgery exercise. They are not come legitimate. They didn't come legitimately. Basically they have stolen the election. That's why they become prime minister, they become chief ministers, everything. We are going to demonstrate in a bigger way in coming days. That's what Rahul also mentioned. पूछिए। पैंतालीस साल से प्लेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी नहीं है, ठीक है। अब इतिहास में मत जाइए, आज की हकीकत की बात कीजिए। आज की हकीकत है वोट चोरी, और वोट चोरी का नतीजा है पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई। आप इस मुद्दों से ध्यान हटाकर आप मुझसे सवाल, आप नहीं अरे कई लोग के सवाल पूछ रहे हैं कि 60 साल पहले आपने क्या किया। आप जानते हैं कि पहला तेल का कारखाना बिहार में लगाया गया और इसकी कड़ी आलोचना हुई। पंडित जी की कड़ी आलोचना की, क्यों आप बरौनी में लगा रहे हैं, क्यों नहीं आप जहां तेल आप निकाल रहे हैं, तेल और कहीं निकाला जा रहा है। पाइपलाइन लगाया गया, बिहार में वो तेल लाया गया और कारखाना बना अविभाजित बिहार में। तो इतिहास में कई बातचीत हो सकती है, मुझे भी इतिहास की कुछ जानकारी है। मैं रविशंकर प्रसाद का जवाब देना चाहता हूं।
हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, हम राजनीतिक बैठक नहीं करेंगे तो और क्या बैठक करेंगे? राजनीतिक पार्टी सिर्फ राजनीतिक बैठक करती है, राजनीतिक मुद्दों लेती है। और रविशंकर प्रसाद जी को चिंता होनी चाहिए। लद्दाख में अभी अभी बीजेपी का ऑफिस जलाया गया है, वो वोट चोरी को लेकर हमारी आलोचना कर रहे हैं, उद्योगीकरण को लेकर हमसे सवाल कर रहे हैं। आप नहीं, हमारे बीजेपी के मित्र और साथी। और वहां बीजेपी के ऑफिस पहले मणिपुर में चला और अभी अभी 1 घंटे पहले लद्दाख में लेह में बीजेपी का ऑफिस जलाया गया। तो चिंता उनको उन विषयों पर होना चाहिए। की बैठक है बिहार में, आज आप बात कर रहे हैं प्रताप तेजस्वी यादव की, लेकिन महागठबंधन में आज तक आपने अपना फेस क्लियर नहीं किया। लगातार आपसे सवाल पूछे जाते रहे, आप क्लियर करते रहे कि आपका चेहरा तेजस्वी होगा या कांग्रेस का कोई होगा, इसको तो स्पष्ट करेंगे। शुक्रिया। बार बार कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के प्रयासों को गलत रास्ते में ले जाने के लिए कांग्रेस पार्टी महागठबंधन बिहार में बिहार के लोगों के मुद्दों को लेकर एकजुट होकर आगे बढ़ रही है। मुझे ताज्जुब होता है कि सवाल ये क्यों नहीं आता कि वोट चोर रोजगार चोर भी है। सवाल ये क्यों नहीं आता कि वोट चोर आमदनी और बचत चोर भी है। सवाल ये क्यों नहीं आता कि वोट चोर ने क्राइम बढ़ा दिया। सवाल ये क्यों नहीं आता कि वोट चोरों ने किसानों का दाम दुगना नहीं किया। सवाल ये क्यों नहीं आता कि वोट चोरों ने पेपर लीक करवाया। सवाल ये क्यों नहीं आता कि वोट चोरों ने पेपर लीक करवा के छात्रों पे युवाओं पे लाठीचार्ज करवाया। मुद्दे बिहार के हैं, बिहार की जनता के हैं और उसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जनता की आवाज बनिए, बिहार की आवाज बनिए, भारत की आवाज बनिए और वोट चोरों से सवाल कीजिए 11 साल में आपने क्या किया, 20 साल में आपने क्या किया। सवाल ये है, बिहार के हैं, भारत के हैं, जनता के हैं। धन्यवाद। सर एक सवाल है सवाल ये है सर पवन सर तमाम सवालों में एक सवाल तो बनता ही है ना, महागठबंधन का चेहरा कौन है। पहला सवाल आपसे। दूसरा सर, इसी साथ ये जो संगठन सृजन अभियान है, इसका कोई टाइमलाइन है क्या? क्योंकि उदयपुर से लेके अहमदाबाद का लगातार संगठन को मजबूत करने की बात आप लोग ने की थी, 10 राज्यों में चल रहा है। इस दिन और टाइमलाइन फॉर दिस वन? There are timelines. Clearly, we told about there are timelines. 2025 is the Sankhatan Srijan Abhayan ka timeline. Maybe sometimes it will extend 1 or 2 months. That's all. Across the country. It will be across the country. सर एक सवाल है जयराम सर एक सवाल है जयराम सर। अभी एफआईआर का मामला चल रहा है, एफआईआर का मामला चल रहा है और 30 तारीख को फाइनल निकाल। इस बीच में 1-2 रोजों में एक बूथ पर 200-250 लोगों को नोटिस जारी है। लेकिन कांग्रेस के किसी भी नेता की तरफ से इस तरह की इसका खंडन नहीं हो रहा। इसके तरफ से क्या हो रहा है इसके बारे में क्या फिर से बोलिए। सहयोग भी हो रहा है। हाँ। 30 तारीख को फाइनल निकाल इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक 200-250 लोगों को नोटिस जा रहा है। जो भी डिस्क्रिपेंसीज थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, महागठबंधन की सभी पार्टियों की तरफ से, हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया और आपने ये भी देखा कि इलेक्शन कमीशन के अनुसार जो मृत लोग थे उसमें से कुछ लोगों ने राहुल गांधी जी के साथ जाके चाय पी। जो डिस्क्रिपेंसीज तो हैं, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, सभी ने देखा पूरे देश में। और इस तरह की कई विसंगतियां हैं
तो उसको इलेक्शन कमीशन को दूर करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम ही है फ्री एंड फेयर पोल कराना। जो भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंडेड दफ्तर बन के काम करेगा तो कभी भी फ्री एंड फेयर पोल नहीं हो पाएगा। उसी का हम लोग मुखालफत कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर पोल हो, तभी जनतंत्र बचेगा, तभी संविधान बचेगा। धन्यवाद। सर एक सवाल मेरा जयराम सर से मेरा सवाल है कि सर जयराम सर से मेरा सवाल यही है कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के लिए बिहार को 85 साल इंतजार क्यों करना पड़ा? आपके भी मुख्यमंत्री रहे बिहार में, लालू राज भी रहा, लेकिन नीतीश राज में आपको सीडब्ल्यूसी की बैठक करनी पड़ रही है। मजबूरी क्या थी? एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की बैठकें सिर्फ चुनाव के संदर्भ में नहीं किया जाता। अभी हमारे प्रभारी ने आपको बताया है, बेलगावी में हमारी बैठक हुई, उसके बाद अहमदाबाद में बैठक हुई, अभी पटना में बैठक हुई है। तो अलग अलग जगहों में हम बैठक करते हैं। साधारण तरीके से हम दिल्ली में कराते हैं, ज़्यादातर हमारे बैठकें दिल्ली में होती हैं, पर कभी कभी हम दिल्ली के बाहर भी करते हैं। तो ये कहना कि हम बड़े दशकों के बाद पटना में आए हैं, हमारे कई ऐसे बैठकें बिहार में हुई है। ऐसा नहीं है बिहार में नहीं हुआ है। बिहार में हमारे नेता आते हैं, हमारे नेताएं आए हैं, हमारी बैठकें हुई हैं, विचार चिंतन मंथन हुआ है। पर एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की बैठक जो अभी एक सिस्टम हमने चलाया है, खड़गे जी ने और राहुल जी ने, कि जहां हो सके वो दिल्ली के बाहर ही हम करें। तो बेलगावी में हुआ, एक साल के अंदर ये तीसरा बैठक है एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी का। 8 महीने के अंदर ये कभी नहीं हुआ है। और ये एक जानबूझकर एक रणनीति अपनाई गई है खड़गे जी की और राहुल जी की, कि हो सके जितना हो सके हम बाहर ही करें। During the CWC meeting, was there any discussion on the number of seats Congress will be contesting? That are all internal decisions, sir. Bihar unity is discussing with Bihar Congress is discussing with other allies. CWC didn't discuss about the seat sharing alliances. One major thing also I left out. I would like to mention in your notice. Working committee, extended working committee appreciated Telangana government today for introducing a historic decision. In Telangana, 42% reservation have been given to OBC and EBC in the local body election. This is the role of the Congress party. Telangana, we have given 42% reservation in the local bodies to OBC and EBC. Telangana is the first state which is giving OBC reservation in the local body 42%. CWC appreciate that also. Bihar also, we have going to promise on EBC issues. Immediately after this, Rahul Gandhi ji and all other Mahagathbandhan leaders will do that. Whatever we are promising, we are going to fulfill it. एक मिनट जो अभी तेलंगाना के बारे में इन्होंने कहा है, मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना में सितंबर के महीने में 2023 में ऐसे ही एक बैठक हुई थी हैदराबाद में, एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, और 2 महीने के अंदर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी। 2 महीने के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी। अभी पटना में एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है और काउंटडाउन शुरू हो गया है। 2 महीने के अंदर महागठबंधन की सरकार बनेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।